Assalamu alaikum dear student, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the explanation of practice sheet 1, practice sheet 2 as well as the weekly test. So practice sheet 2 is level of biological organization and biological methods. Question number 1 is, which one of the following is correct sequence in biological methods? Correct sequence: A. Observation, hypothesis, laws, theory. अब यहाँ पर आपके आंसर जो है वो डायरेक्टली बोल्ड किए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपके आंसर को ही डिस्कस करता हूं. सो आंसर बी, हमारे पास जो आंसर बी दिया गया है, देखिए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट. तो जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स की तो हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, देन डेटा कलेक्शन. मींस अब सीक्वेंस बनाए तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ रही है, इसलिए आंसर बी शुड बी द करेक्ट. देन इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, select the correct sequence regarding ecosystem. Several species living and interacting in the same area. So answer should be, this is not sequence, सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, आर सेंटेंस रिगार्डिंग इकोसिस्टम स्लैश, इसको हम थोड़ा सा चेंज करें. ओके, खैर द आंसर डी शुड बी द करेक्ट, कम्युनिटी विद इट्स एनवायरनमेंट. सो आंसर डी शुड बी द करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल इन द लाइफ hierarchy proceeding down from an individual animal. You know very well, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कहता है कि लेवल ऑफ लाइफ, और जिसे हम हायरार्ची का नाम भी देते हैं. सो हमारे पास जो आंसर है, यू नो वेरी वेल, द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन. सो द ऑप्शन हमारे पास ए है ब्रेन, ऑर्गन सिस्टम, नर्व सेल, नर्वस टिश्यूज. दिस इज नॉट करेक्ट. ऑर्गन सिस्टम, नर्वस टिश्यूज, सेल, ब्रेन, आल्सो नॉट करेक्ट. ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज, सेल, ऑर्गन, नॉट करेक्ट. सो आंसर द डी ऑप्शन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस टिश्यूज, नर्व सेल्स, डी, then organ system, tissues, molecules, cell. So answer D should be the correct sequence. The option 4, question number 4, group of potentially interbreeding organism constituent are. Potentially interbreeding, हमने definition पढ़ी थी species की. interbreeding organism के group को हम नाम देते हैं species. So answer A should be the correct. Then question number 5, whenever you see the facts and figures about your assignment by quantitative and qualitative measures, then its studies to be. जब हम quantitative and qualitative measures से observe करते हैं अपने facts and figure about the assignment, that is called observation. Answer B should be the correct. Then question number 6, all are subunit monomers for the following except. Subunit monomers: fatty acid, nucleic acid, glucose, all are subunits. Proteins, it is macromolecule, that's why except की बात हो रही है. Answer D should be the correct. Then question number 7, from the following facts all are true regarding multicellular organism except. All options are concerned with the multicellular organism, as option A having specialized system. So multicellular, most of multicellular having specialized system, having functional tissues, yes, system are highly evolved, most of living beings में system highly evolved है, poorly functional cells. तो except की बात हो रही है, so answer D should be the correct. Then question number 8, a structure within living organism usually composed of several tissues types that forms functional unit, that is the
ऑप्शन ए ऑर्गेनल्स, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन डी सेल, ऑप्शन ई एटम्स। सो जब टिश्यूज मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, सो आंसर बी शुड बी द करेक्ट, यस फंक्शनल यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर the 9 is, if the 6 carbon atoms covalently adjoin with 6 hydrogen atoms, then they forming molecules will be chemically termed as। तो you know very well, जब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंटली बॉन्डिंग करते हैं तो देयर दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक तो हो नहीं सकते क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे, सो आंसर डी शुड बी करेक्ट, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10, इकोसिस्टम इज फॉलोड बाय, इकोसिस्टम इज फॉलोड बाय, तो याद रखिएगा इकोसिस्टम किसके बाद बनता है, किससे बनता है, कम्युनिटीज मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं, सो आंसर सी शुड बी करेक्ट as community। Question number 11, if entire area of the world is inhabited by freshwater ecosystem, marine water ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, it is biologically termed as। तो you know very well, जब number of ecosystem हम देखते हैं तो इस अर्थ सरफेस पर, तो that is called biosphere, so answer C should be the correct। Then question number 11 is, when we prove in the laboratory the proteins are composed of carbon, nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, then in term of biological methods this activity called as। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे होते हैं कि प्रोटीन किससे बने हैं, इन एटम से बने हैं, प्रोटीन कंपोजिशन हम देखें और देखें इसमें कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगा मेथड बायोलॉजिकल टर्म में, या बायोलॉजिकल मेथड्स के हवाले देखा जाए तो आंसर शुड बी द एक्सपेरिमेंट, इसे एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, आंसर सी शुड बी द करेक्ट। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द मलेरियल केस इन द सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद। कहते हैं अगर हम सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में मलेरियल केसेस देखने जा रहे हैं, and we select 13 patient for our assignment, हम अपनी assignment के लिए 13 patient select करते हैं, then this process in medical science is said to be same as when we select the patient, then that is called data collection, so answer A should be the correct। Question number 14, cell of same kind in group performing specific function that collection of cell constituent a functional unit that is same as। जब सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और स्पेसिफिक सेल के मिलने से टिश्यू ही बनता है, दैट इज आंसर शुड बी द डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ आवर रीजनिंग रेफर्स टू इफ एंड देन इट विल बी। तो जब हमने बात की थी बायोलॉजिकल मेथड्स को डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा कि जब हमारे पास कोई भी रीजनिंग इफ एंड देन पर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, सो आंसर बी शुड बी द करेक्ट। देन 16, द वाटर एंड ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स बोथ आर इनऑर्गेनिक केमिकली, देन द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी। अब हमारे पास कह रहा है कि वाटर एंड ऑक्सीजन जो है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। सिर्फ जो स्टेटमेंट्स में थोड़ी सी घुमाता हूं तो आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, किस तरह आपने स्टडी किया है, उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मैं स्टेटमेंट को घुमाता हूं, वरना ये सीधी सीधी एक स्टेटमेंट भी आपको दी जा सकती हैं। तो बेटा क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि हो सकता है कि कभी बहुत सारे आसान क्वेश्चन को भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा टर्निंग देकर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सो आंसर बी शुड बी द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, nucleus of the all kind of atom is positively charged because it consists of the following pair of subatomic particles। अब न्यूक्लियस ऑल एटम के जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर है,
लेकिन इसमें होते कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपको दिए गए लेकिन आंसर आपका बोल्ड है, सो हम आंसर को डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर नल चार्ज है, जीरो चार्ज जिसे आप कह लें या नल चार्ज कह लें। ओनली प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, बाकी जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उनके चार्जेस डिस्कवर नहीं हुए अभी तक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, देन इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, a community is followed to ecosystem, then community is followed by the species. You know very well, जब स्पीशीज बहुत सारी स्पीशीज मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं तो कम्युनिटी को फॉलो कौन करता है? स्पीशीज। तो आंसर ए शुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। सो हमने पढ़ा था लॉ इज द यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं, वो ऐसी स्टेटमेंट जो 100% ट्रू हो और अनचेंज्ड हो, दे आर कॉल्ड लॉ। सो आंसर सी शुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ए माइक्रोमोलिक्यूल, बी मैक्रोमोलिक्यूल, सी पॉलीमर, ऑप्शन डी। अब देखें यहां पर बी और सी आपका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं इसको, पॉलीमर भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ओके, दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस शीट नंबर 2 विद आंसर